Hello dear students. Now in the last we have done the concept of plane polar coordinate systems. उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, that is of spherical polar coordinate systems. सबसे पहले तो एक चीज माइंड में आनी चाहिए, why we using these so many kinds of the systems to specify the position of any particle. First of all, we have discussed about the Cartesian coordinate system, then plane polar coordinate system, and now I am going to discuss the spherical polar coordinate system with you. Then what is the need to use so many kinds of the coordinate systems? In case of Cartesian coordinate systems, always remember there is basically the motion related to the ट्रांसवर्स नेचर, मीनिंग ट्रांसवर्स नेचर को जब मोशन को स्टडी करना है ट्रांसवर्सली, ओके, अलोंग एक्स, अलोंग वाई और अलोंग जेड, देन यू विल यूज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. बट इन केस ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यू कैन take translational motion like r and theta. First of all, you have to remember that there is the plane, that is only two-dimensional system. प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा ही केवल किस में होगा, टू डायमेंशन में होगा. इट इज नॉट इन स्पेस, ओके, आर एंड थीटा. उसमें आप क्या कर सकते हो, दिस इज बेसिकली इट कैन रोटेट, रिवॉल्व, ओके. तो यहाँ पे हम इसको रोटेशनल मोशन के लिए यूज करते हैं, ओके. हियर इज ट्रांसवर्सल मोशन और हियर इज द रोटेशनल मोशन. But in case of spherical polar coordinate systems, you can use the spherical symmetry. You can use spherical symmetry. जहां पे भी आपको spherical symmetry की जरूरत है. And one point is more important, there is no specified direction of motion. मोशन है बट नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन केस ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो मेन पॉइंट्स क्या हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मोशन होगी दैट इज ऑलवेज ट्रांसवर्सल, ट्रांसलेटरी, नॉट ट्रांसवर्सल, यू कैन से ट्रांसलेटरी मोशन. बट इन केस ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इट कैन बी रोटेट लाइक अ सर्कल, सर्कुलर मोशन यू कैन सी. But in case of spherical polar coordinate system, it can a spherical kind of symmetry. That means rotation along x, along y, along z, or translated as well as. Okay? तो यहाँ पे आपके पास तीन coordinates important है. Three parameters are used, which are basically the r, theta, and phi. Clear? इस पूरे को शो करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. दैट मीन्स इन केस ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, टेक अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड. लेट अस सपोज दिस एक्सिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस एक्सिस इज जेड. I take a point in space, let us say point P in XYZ plane, and from origin its distance is considered to be r vector. Clear? अब देखो Z से जो एंगल बन रहा है रेडियस वेक्टर का, उस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज थीटा. दिस एंगल इज थीटा. And this is always clockwise. Clear? ये जो एंगल रिप्रेजेंट किया है थीटा, this angle is known as zenith angle, or sometimes we say the angle of colatitude. It can take the values from, or you can say theta lies between 0 and pi. ओके, कैसे 0 एंड पाई में मैंने यहाँ पे केवल लिख दिया, पर यह हुआ एक्चुअली में कैसे, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको डिस्कस करके बताऊंगा. क्लियर? सेकंड पॉइंट इज, लेट अस सपोज फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन x y plane.
जो ये एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर पॉइंट पी से मैंने क्या फोल्ड किया है, परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर फोल्ड किया है उसका ओ पॉइंट से आप अगर देखो डिस्टेंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज फॉल फ्रॉम पॉइंट पी। अब जो ये प्रोजेक्शन ड्रॉ हुई है, इसका यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, बिकॉज इट इज फॉल ऑन एक्स वाई प्लेन। क्लियर? एंड से दिस पॉइंट इज क्यू। फ्रॉम पॉइंट Q you can draw or drop a perpendicular on x-axis. If this is a perpendicular, that means this angle is also equals to 90 degree. If this is theta, from alternate anterior angles, you can say angle OPQ is also equals to theta. Clear? And the angle made by x-axis to the projection, that is OQ, is taken to be angle phi. And this angle phi is known as azimuthal angle. This angle phi is known as azimuthal angle, which is always made by x-axis with projection dropped from the point P. Clear? और जो ये आपके पास OQ रिप्रेजेंट किया मैंने, इस प्रोजेक्शन का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। क्लियर? ये रो कैसे यूज हुआ, इट विल बी डिस्कस फर्दर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में आप देखोगे इस फैक्टर रो का कितना ज्यादा यूज होता है, और इसी को हम बोलते हैं रो एक्सिस। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए, थीटा एंड फाई, एंड दिस थीटा इज इन द क्लॉकवाइज एंड दिस फाई इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, दैट थीटा इज ऑलवेज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वेयर फाई इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके बाद एक पॉइंट था हमारे पास R, that is the radial distance or radius vector, and radius vector R can take the values from 0 to infinity. That means R is varies from 0 to infinity. Where the angle phi, this angle phi, it can take the values between 0 and 2 pi. Is it clear? यहाँ पे ये तीन फैक्टर्स जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किए हैं, आपको अभी समझ में नहीं पड़ा होगा, मुझे पता है क्योंकि। क्लियर? चाहे मैंने आपको लिख दिया, समझा दिया, पर अभी तक वो पिक्चर माइंड में क्लियर नहीं हुई कि एक्चुअली में ये चीज है क्या, किस तरह से यूज किया और क्यों यूज कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे मेन तीन फैक्टर्स है, R, थीटा, फाई, और इन R, थीटा, फाई को हम पूरे सक्सेशन में ऐसे लिखते हैं, R, थीटा and phi, which are the position vectors of point P in spherical polar coordinate systems. अब आप कहोगे यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया spherical polar coordinate system, पर थोड़े टाइम पहले मैं यूज कर रहा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो आपको दोबारा से वही चीज बता रहा हूँ, बेसिकली वी आर ट्रांसफॉर्मिंग, वी आर टेकिंग द ट्रांसफॉर्मेशन from Cartesian coordinate system to spherical polar coordinate systems. That means if you know the values of the Cartesian coordinate systems x, y, z, then how can you change or how can you transform the parameters into the spherical polar coordinate systems? Basically all these parameters, cylindrical polar coordinate system, plane polar coordinate system, spherical polar coordinate systems, these all are basically the transformation equations. कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में, तो यही मेन पॉइंट आपका यहाँ पे है जो हम आगे स्टडी करेंगे। क्लियर? अब जो पॉइंट्स दिए मैंने R, थीटा, फाई, इनको ध्यान से पहले समझने के लिए मैंने एक आपके लिए जस्ट एक मॉडल तैयार किया। लेट अस सपोज आई हैव दिस काइंड ऑफ सिमेट्री। मैंने क्या किया, एक एक्सिस ली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड देन जेड एक्सिस। आपको दिख रहा है आराम से?
इसको मैं ऐसे निकाल देता हूँ। ओके, दैट मीन 3 पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लिए एक्स, वाई एंड जेड। ओके, जेड आपके पास क्या है, टॉप पे। अब देखो इस चीज को अगर आप ध्यान से देखो, क्लियर, आई थिंक आपको विजुअलाइज हो रहा है अच्छे से, एक्स, वाई और जेड। अभी अभी मैंने वहां पे आपको क्या बोला कि आपके पास एंगल थीटा किससे बन रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो मैंने उसको क्या किया, जो ये स्फीयर है, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपको कि हमें एक स्फेरिकल सिमेट्री तैयार करनी है, लाइक अ बॉल। तो उसके लिए मैंने क्या ले लिया, एक बॉल ले लिया। स्फेरिकल सिमेट्री बनाने के लिए, एक स्फीयर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज जरूरत है, आप कैसे एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो, सिमेट्रीज को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, यही मेन हमारा मोटिव है, जो इसमें ऑब्जेक्टिव है कि हमें करना क्या है। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये था। अब सेकंड पॉइंट पे आओ। मान लो इस बॉल पे कोई भी एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, जिसको मैंने बोर्ड पे डायग्राम जो है उस पे मैंने इसको बोला हुआ पॉइंट पी। क्लियर, इस पॉइंट पी से ये वाला जो आपको पास पॉइंट शो हो रहा है, इस पॉइंट पी से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या बोला, रेडियस वेक्टर आर। क्लियर, अब जो ये वाला एंगल बन रहा है यहां से लेके यहां तक का, दिस एंगल इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द थीटा एंगल, एंड दिस थीटा एंगल इज नथिंग बट नोन एज द जेनिथ एंगल और एंगल ऑफ कोलैटिट्यूड। इज इट क्लियर? अब देखो अगर मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर रहा हूं तो इसको कैसे रोटेट करेंगे, मीनिंग ये आपके पास ये वाली सिमेट्री आ रही है, लाइक दैट वन। रोटेशन पे अभी आ रहे हैं बात। अब ये वाला एंगल थीटा जो है वो कहां से कहां वेरी कर सकता है, दिस इज 0 डिग्री, फिर यहाँ पे थोड़ा सा एंगल आया थीटा, लेट अस सपोज 40 डिग्री और 45 डिग्री, देन इट इज ऑफ 90 डिग्री, आफ्टर दैट आफ्टर दैट आफ्टर दैट। तो टोटल यहां से लेके यहां तक का कितना एंगल बन गया, फ्रॉम दिस पॉइंट टू रोटेट दिस पॉइंट, दिस कंप्लीट एंगल इज ऑफ पाई, दैट इज ऑफ 180 डिग्री। अब आप कहोगे कि इसको रोटेट करके हम यहां पे भी तो ला सकते हैं एट दिस पॉइंट, यस यू कैन टेक। पर एक बात सोचो, जो पॉइंट यहाँ पे है, या मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे शो कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट, विजुअल है, यस ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पे फिक्स करूं तो इसकी जब मैं रोटेशन करूंगा तो ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, दोनों पॉइंट्स यहाँ पे जो एंगल आपके पास रोटेशन शो कर रहे हैं, ये रोटेशन का पॉइंट क्या रहेगा, सेम। क्लियर, इसलिए हम इसको कहां से कहां तक मूव करते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, दैट इज ऑफ रोटेशन बाय पाई। क्लियर, दैट मीन एंगल थीटा कैन वेरी इन बिटवीन 0 एंड पाई। तो ये पॉइंट आपको यहां से क्लियर हुआ। ओके, अब उसके लिए अब लेके आते हैं पॉइंट प्रोजेक्शन का। अब सपोज करो आपके पास, यहाँ पे मैंने इसको एक ड्रॉ किया हुआ है, ये चीज मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूं। ओके, अब आप देख रहे हैं इसको ध्यान से। अब जो ये प्रोजेक्शन है, मान लो यहां से कोई पॉइंट है सरफेस पे और उससे मैंने इस पॉइंट पे क्या शो किया, एक फॉल किया, एक परपेंडिकुलर। क्लियर, ओरिजिन से उस परपेंडिकुलर पॉइंट के ड्रॉप तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज बेसिकली द फाई। इज इट क्लियर? अब जो ये एंगल है यहाँ पे फाई जो बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, अब ये एंगल 5 आपके पास यहां से आ रहा है। इज इट क्लियर? मीनिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और प्रोजेक्शन के बीच का जो एंगल है वो क्या है, फाई है। अब एंगल फाई क्यों लिया है? अब जो ये एंगल फाई है इसमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, रोटेशन करो अपनी कर्ल करो फिंगर्स को, दैट मीन यू विल रोटेट। हमें बेसिकली क्या बनाना है, एक पूरा स्फीयर बनाना है। अब जो ये खाली स्पेस पड़ी है इसको आप स्फीयर में कैसे जाओगे, मान लो इस पॉइंट से आप इसको क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। पॉइंट क्लियर हुआ? अब रोटेशन कैसे हो रही है, क्लॉकवाइज। ओके, तो वो वाला पॉइंट आ गया। जो ये रोटेशन हो रही है कितने तक हो सकती है कंप्लीट रोटेशन, 0 to 2 पाई, दैट इज ऑफ एंगल 360 डिग्री। इज इट क्लियर? दूसरी बात आपके पास यहाँ पे देखनी थी, जो ये वाली चीज थी इसके करके हम क्या बना रहे, ये वाले पॉइंट बना रहे ऊपर वाले। ठीक है, जो ऊपर वाला पॉइंट आ गया रोटेशन करके, फिर 90 पे पॉइंट आ गए तो हेमिस्फीयर बन गया, नीचे आएंगे घूमते 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 तो आपके पास क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा एक स्फीयर क्रिएट हो जाएगा।
तो ये वाला मेन पॉइंट है कि ये आपके पास सिमेट्री जो बनी है, ये पूरा एक स्फीयर बना है, इसमें आपके पास 3 पैरामीटर्स जरूरी है, r, थीटा, फाई। r आपके पास कहां से कहां तक हो सकता है, इट कैन एट एनी पॉइंट बड़ा स्फीयर बनाना है तो ज्यादा ले लो, और बड़ा बनाना है और ज्यादा ले लो। तो इसके लिए r की जो वेरिएशन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड कैन रीच अप टू द इंफिनिटी। इज इट क्लियर? r varies from 0 to infinity. Theta, this angle theta, that is the zenith angle, varies from 0 to pi. Clear? And this angle phi, which is basically the angle of azimuthal, this angle, that is right hand rule, clockwise direction, and it can take how much rotation, that is 0 to 2 pi. इज इट क्लियर? तो इसके लिए आप आई थिंक उम्मीद है कि आपको इसकी एक पिक्चर क्लियर हुई होगी, क्या करना है और कैसे करना है और क्यों किया है। इसमें आप सिंपल से एक एग्जांपल मेरी याद रखो कि सपोज करो आप एक मिट्टी का स्फीयर बना रहे हो और आप जा रहे हो किसी कुम्हार के पास। कुम्हार समझते हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो क्या चाहिए उसमें, मिट्टी चाहिए, नीचे से स्टार्ट करना, होली 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 ऊपर जाएगा। पॉइंट क्लियर है? नीचे से ऊपर तक कितना एंगल हुआ, पाई। बात क्लियर होगी? कितना बड़ा बनाना है, छोटा बड़ा उससे बड़ा, दैट इज रेडियल डिस्टेंस, दैट इज आर। ओके पॉइंट। तीसरा फैक्टर, जब वो बना रहा है उसको तो उसमें रोटेशन कौन सी चल रही है, 2 पाई की, दैट इज द एजीमुथल एंगल फाई। नीचे से स्टार्ट किया, ऊपर तक गए हो, करते करते आप पूरा का पूरा एक क्या क्रिएट कर देते हो, दैट इज ऑफ स्फीयर। दैट मीन 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड अगेन टू टेक और टू क्रिएट अ स्फेरिकल सिमेट्री r, थीटा एंड फाई। इज इट क्लियर? द मेन पॉइंट इन दिस दैट इज 0 to O to Q। जो ये प्रोजेक्शन आपके पास आई है, इसकी जो वैल्यू है वो हमने कितने ली है, रो, दैट इज द रो डायरेक्शन। एक और पॉइंट, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो ये प्रोजेक्शन है इसकी जो लेंथ है क्या वो r के बराबर होगी, रेडियस के बराबर है? नहीं, इट मे बी और इट मे नॉट बी। क्लियर? क्योंकि जरूरी नहीं है पॉइंट P मेरे पास यहीं पे हो, पॉइंट P मेरे पास यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। क्लियर? इट कैन एनीवेयर। तो आपके पास जैसे ही ये प्रोजेक्शन का पॉइंट, सपोज करो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहीं पे फॉल करे, किसी और प्लेन में आपके पास में आपके पास फॉल हो सकता है। दैट मीन द लेंथ ऑफ रो मे और मे नॉट बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस r। इज इट क्लियर? दूसरी बात, आपने अब देखो यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। बट हाउ? क्योंकि पिक्चर जो ये बोर्ड पे बनी है इट इज 2 डायमेंशनल, इट कैन नॉट बी क्लियर दैट इट इज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे आप चीज चेक कर सकते हो, ये वाला पॉइंट है। ओके, ये देखो ध्यान से, जो ये प्रोजेक्शन आपके पास फॉल हो रही है, इस प्रोजेक्शन का एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। क्लियर हो गया? एंड दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर इसी प्रोजेक्शन का मैं आपके पास यहां से आपके पास एंगल ड्रॉ करूं तो ये आपके पास क्या होगा, अगेन कट किस पे करेगा, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे, एंड इट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, लाइक दैट। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया? सिमिलरली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी पॉइंट में भी ये प्रोजेक्शन कट कर रही है तो उसका एंगल आपके पास कितना बन रहा है, 90 डिग्री। दैट मीन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? आई होप ये वाले पॉइंट्स आपको इस चीज से, इस मॉडल की हेल्प से आपको इजीली शो हुए होंगे। ये कुछ नहीं है, एक बॉल है, जस्ट स्फेरिकल स्पॉन्जी टाइप बॉल, जो एक्सरसाइज बॉल होती है। आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, और इस चीज को समझ सकते हो। अपने घर पे भी आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ओके, थैंक यू। इसके आगे हम इसका स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल पार्ट।